So we started with the array yesterday's class. Let's quickly recap. So if you want to store multiple values, as of now, we were having variable option. But the problem is with the variable, if you create that many number of variables, that will increase the length of code, and that is not an efficient option. Retrieval of data is time consuming. Then we discuss about what exactly data structure concept is. So data structure is nothing but a structure or a container using which we can store multiple values in an organized way. An organized way. So you can also think of data structures are nothing but container objects. We have a kind of a container. Inside that we will hold other things. So data structures are designed first using classes and interfaces in Java. So creating a design means specifying how the actual container object will look like and how it will function. So जब भी आपको कुछ data store करना है, we have to create that object. Algorithms simply operations that we perform on the given container or data structures, and algorithms are implemented using methods. So array is simply a linear data structure which is used to store multiple values of same type in a sequential memory locations. We talked about how do we store data using an array. So there are two situations. We know the values in advance and we do not know the values in advance. So if you know the values in advance, this is very simple. Comma separated values in curly braces. Then we have this variable name, int, or whatever the data type is, and square bracket notation. If you do not know the values in advance, so data type, square bracket notation, array name, new, data type, and the size of the array, how many elements you want to store. In both the cases, you understood LHS is LHS, the square bracket is just a notation. A notation to specify that this is an array type of variable. And this int or whatever it is, it specifies what is the type of element that you are going to store inside the array. So int means all the values inside this array will be of type integer. If it is char, that means all the elements in the array will be of type char. If it is string, means all the elements inside the array are of type string. So array is just a reference variable that refers to an object, and that object contains the values. So whenever you try to print this reference, you will get the hash code, not the actual array content. So a lot of people get confused in this. Whenever you try to print an array, they think that it will print the content, but it is not going to print the content. It is going to print the hash code, because behind the scene toString method will be called, and toString method of object class prints the hexadecimal hash code. So right hand side we have object, left hand side we have this reference variable. Then we understood the syntax. So every array you create, it is nothing but object creation. And whenever you create an array, array elements will be initialized with default value if the values are not specified. So array size restrictions, it is mandatory to specify the size if you do not know the elements. Otherwise, compile time error. You can specify the size as 0, that is perfectly fine. If you specify the size as negative, you'll get negative size exception. And if you want to specify the value, that should be of type byte, short, int, char. Otherwise, you'll get compile time error. Then in every array object, there is one variable called as length is created. That is a variable part of this particular object which contains the size of the array, how many elements are there. And length is a method that is present in string class which prints the length of the string. So printing an array reference, that we also discussed, it is going to print the hash code, not the content. How do we access the elements of an array? Since elements are stored in sequential memory locations, and that reference variable has the address of first element. So using that reference, we can access the elements. So we have to specify the index using that index, and index ranges from 0 to length -1. Index is just a measure how far the element is from the first element. That is how we access array name followed by square bracket and inside that index. So if you specify an index which is not in the range, what happens? You get a array index out of bound exception. This is the exception we get. Now we can iterate the elements
of an array one by one using iterational for loop or enhanced for loop. Then this is an anonymous array. If you want to pass and create an array and you want to pass this array to a function or something, we can create such anonymous array as well. Then we talked about a simple linear search question. This was a linear search. So there we took a flag. We initially assume that element is not there. The moment we get the element, we will say this element is present and we'll make the flag as true. And we'll stop there itself. Similarly, we talked about finding the max, second max. Then we talked about printing the array elements in reverse order, sum of array elements, linear search, max, second max. I hope you had tried mean and max as well, mean, second, man. And I give assignment for you guys to do a array copy and print even elements. Have you done that? Okay, perfect. Now we'll quickly see a little theoretical part and we'll do more questions again. So there is something you must have heard, this multiple dimensional arrays, 2D arrays, 3D arrays, right? So multi-dimensional arrays that we will quickly see, and we will see multiple questions based on that. So multi-dimensional array. So what do you mean by multi-dimensional array? Now traditionally अभी तक आपने क्या देखा था? So multi-dimensional array means array contains an array. An array which contains another arrays as its elements. Another array inside array बोल सकते हो आप. Array inside an array. Arrays inside an array आप बोल सकते हो. Multiple या single भी रख सकते हो आप. Example. Now, typically, how many values you are storing here? Int equal to 100, single value. We know that. Now, int. So, what this means? Square bracket. So, this will have multiple values. This is like. तो ये notation क्या specify करता है? What this specifies? Array contains multiple values. Array contains multiple values. Now I am going to have, let me write this. Now what happens? I have an array. That contains arrays as its elements. क्या है? एक array है, उस array के अंदर array है और उस array के अंदर elements हैं. So what type of elements are there? Integer. तो यहां पर मैं रेफरेंस का नाम दे सकता हूं. I will just call it as array of array. अब इसके अंदर कौन से टाइप के एलिमेंट्स हैं? इंटीजर. So integer, look at this, one square bracket, another square bracket. So what do you understand this? So I have two square brackets. I have two square brackets. So what it denotes? Not two arrays. I have an array
To say that this is an array, to say that this is an array, I write square bracket. But this is not a normal array. This array contains another arrays as its elements. That's the reason. One more square bracket. Akshay, जाओ चॉकलेट लेके आऊंगा. जाओ जाओ, थोड़ा घूम के आ जाओ. जाओ जाओ जाओ. अरे जाओ फटक से. 2 मिनट हो गया बस. वी स्टार्टेड कितना, 5 मिनट. हाउ लॉन्ग वी स्टार्टेड, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स. कितना पावरफुल है मेरा सेशन जिससे हाँ अक्षय. नहीं है पावरफुल मतलब. इतना थियरी मतलब, अरे थियरी कहाँ स्टार्ट किया मैंने. मैं तो बस कल का रिवाइज किया था आपके लिए. कितने बजे सोए थे कल. चलो क्या बताया मैंने, एक बार बताओ. ये कैन यू रीड दिस अक्षय. हम्म. एक एरे है उसके अंदर. ओके. अब मुझे बता सकते हो व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे. व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे. So this example is a jagged array. So what is in jagged array? Array which contains arrays with variable length. मतलब इसके अंदर array है which are of different size. Which are of different size. So can you tell me what is the size of this overall array? Comma separated, what do you see? How many values are there? Comma separated. 1, 2, 3, 4. What is the size of this particular array? 4. Right? What is the size? 4. Now look at this. So I have an array of array which is pointing to an object. Now which contains how many values? 1, 2, 3, 4. So 0th index. So how many values I have? Let's say this is whatever it is. So I have now, is it normal value? First location, but normal value है क्या? No, that is again a array. So that array is stored somewhere where R1, R2, R3, R4. R1 is a reference. R1 is a reference that refers to an object. R2 also refers to another object. R3 also refers to another object, and R4 also refers to another object. So what is there inside the R1? We have one element, 0th index. R2, we have 3 values, and R4, 4. So what are the indexes are there? 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. क्या क्या वैल्यूज है यहाँ पर 0th इंडेक्स पर? I have 0.
यहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे ही है ना, 3 4 6, हाँ चलो 3 4, उसके बाद 7 8 9, ऐसी कुछ है. So this is how your multi-dimensional array looks like. So what is the size of this array? 4. क्या है? 4. इसका साइज 1 2 3 4. कैसे विजुलाइज कर सकते हो इसे? So what is in jagged array? Array which contains another arrays with variable size. इसका लेंथ कितना है? 1 2 3 4. अलग अलग साइज के एरेज हैं. मेक सेंस? हाउ डज मल्टी डायमेंशनल एरे लुक लाइक? आप इसके अंदर एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे कर सकते हो. हाँ, वी कैन डू दैट. Look at this. Now I have an array. This is normal array. Let's say array 1, which contains 1 2 3. 7 8. Maybe let's do one more. These are my 4 arrays. Now I can create an array. I can create an array of arrays. So how do I do that? Array 1, array 2, array 3, array 4. Now I am getting error. So are these elements are of integer? और ये elements ये यहां पर क्यों चल रहा है? अब यहां पर मैंने 1 2 3 लिख दिया ABC ऐसे कुछ. व्हाट इज द प्रॉब्लम? स्ट्रिंग हो गया, नहीं अलाउड है. सो 1 2 3 इज ऑफ टाइप इंटीजर. नाउ दीज array 1, array 2, array 3, array 4 are of type integer? They are not of type integer. They are of type array. So they are of type array of integer. These are array of integers. कौन सा टाइप का है उनका टाइप? अरे यहां से उठा दो ना ये. क्या बोल रहा हूं मैं? आई वॉन्ट टू क्रिएट एरे ऑफ. ये कौन से टाइप का है एरेस? सो दिस इज एन एरे. दिस एन एरे. तो इसके लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं एक स्क्वायर ब्रैकेट टू से दैट दिस इज एन एरे. अब मुझे बताओ ये एलिमेंट्स कौन से टाइप के हैं? ये टाइप के हैं. सो आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग. कौन सा टाइप के एलिमेंट्स है ये? इंट एरे टाइप के. कौन से टाइप के एलिमेंट्स है? इंट एरे टाइप के. एंड टू से दैट दिस इज एन एरे, ये स्क्वायर ब्रैकेट. दो स्क्वायर ब्रैकेट समझे किस लिए है? किस लिए है? ओके. आई एम क्रिएटिंग इसके अंदर दो ही एलिमेंट्स लगते हो. चलो, आई हैव टू एरे ऑफ एरेस. नाउ इट इज योर जॉब नाउ टू टेल मी. इसके अंदर एरे ऑफ एरेस 1, एरे ऑफ एरेस 2. इसको क्या लिखना पड़ेगा मुझे? इसको नाम देता हूं. ये क्या है? एरे ऑफ
एरेस, ये टू से दिस इज एन एरे, ये स्क्वायर ब्रैकेट, और ये एलिमेंट्स कौन से टाइप के हैं? समझे? फाइन. Now I want you to help me print the elements. Now let me create a matrix. So you can also call it as matrix. Now let's simplify this. Now can you help me print this array? ये सारा कंटेंट मुझे प्रिंट करना है. I want you to print this. Now what is the length of this particular array? Array of arrays 4 है, आपके सामने दिखाई दे रहा है. राइट, मैं डायरेक्टली ये एलिमेंट यहां पर लिखो या ऐसे लिखो, बट यू शुड नो व्हाट इज द साइज ऑफ दिस. राइट, साइज ऑफ अ एरे ऑफ एरे कितना है यहां पर आप देख सकते हो. एरे ऑफ एरेस डॉट लेंथ. साइज ऑफ एन एरे ऑफ एरे. अब मुझे बताओ, मुझे ये सारा प्रिंट करना है. कैसे प्रिंट करोगे आप? ये प्रिंट करना है मुझे. तो कितना वैल्यूज, कितने एरे, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं? 4. तो लूप कितने बार चलना चाहिए? ठीक. तो एरे, एरे ऑफ एरेस ऑफ आई. अब मुझे बताओ इससे क्या प्रिंट होगा? तो यहां पर मुझे इसका ये प्रिंट कर रहे हो आप, एरे 1 प्रिंट कर रहे हो, एरे 2 प्रिंट कर रहे हो, एरे 3 प्रिंट कर रहे हो, एरे 4 प्रिंट कर रहे हो, तो क्या प्रिंट होगा? हेक्साडेसिमल हैश कोड, नॉट द कंटेंट, नॉट द कंटेंट. तो मुझे कंटेंट चाहिए क्या, सॉरी ये रेफरेंस चाहिए क्या? नहीं. अब मुझे बताओ इसको प्रिंट करने के लिए क्या लॉजिक लिखोगे? एरे 1 के एलिमेंट्स. तो एरे 1 के या एरे 4 के एलिमेंट्स मुझे प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल एलिमेंट्स. तो इसी के अंदर एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा. लेट्स से इंट j इक्वल टू 0. तो मैंने क्या, किसका लेंथ, ये कितने बार चलेगा? आउटर फॉर लूप, हाउ मेनी टाइम्स इट इज गोइंग टू रन? एन इंटरनल फॉर लूप. जो भी एरे ऑफ एरेस का आई मतलब फर्स्ट इसका लेंथ, फिर ये प्रिंट करेंगे, ये चलेगा उतनी बार. फिर एरे ऑफ एरेस का आई, दैट इज ये वाला एलिमेंट आएगा, इसकी लेंथ फाइंड करेंगे और उतनी बार चलेगा. एरे 3 का लेंथ ये उतनी बार चलेगा, एरे 4 का लेंथ वो उतनी बार चलेगा. So internal for loop is going to run differently. First time it is going to run only once, second time twice, third thrice, and so on. So this is how you print the array. Make sense? अरे कुछ नहीं, ये सिंगल एरे प्रिंट करने का लॉजिक है. दिस इज अ लॉजिक टू प्रिंट कंटेंट ऑफ सिंगल एरे. तो मुझे सिंगल एरे का प्रिंट करना है क्या कंटेंट? नहीं. कितने एरे का प्रिंट करना है? 4. तो मेरे पास अपने पैटर्न पढ़े होंगे, तो इफ यू रिमेंबर, one for loop is from going from one array to another array, and this for loop is for printing content of that particular array. So मेरे पास 4 बार 4 array है, तो 4 बार ये लूप चलना चाहिए. So this loop will run 4 times and each iteration this array का कंटेंट प्रिंट करने के लिए. ये किसके लिए है? इंटरनल फॉर लूप. इंटरनल
for loop is to print the content of array element, content of internal array. पहले मैंने प्रिंट किया एरे 1 का कंटेंट, फिर एरे 2 का, एरे 3 का, एरे 4 का. समझे? Let's do one simple program. Let's say I have two matrices. So I'm creating a simple 2 by 2 matrix. Matrix 1. ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. So I have one matrix and these are the values. ठीक. So क्या इसका annotation है? क्या साइज है इसका? 3 by 3. Can I say 3 by 3? अब मुझे एलिमेंट्स नहीं पता है. आई डोंट नो द एलिमेंट्स. तो उस केस में int 3 by 3. अगर आप इसको देखोगे, सो दिस इज सिमिलर टू, इसमें क्या रहेगा? 0 0 0. This is my matrix. समझे? If I do not know the elements, तो ये और ये सेम है. So if you write this line, ये ऐसा कुछ एरे बनेगा आपका. So if I want to print this matrix का कंटेंट, कैसे प्रिंट करोगे मैट्रिक्स 2 का कंटेंट? मैट्रिक्स 2 प्रिंट करना है. So आपको क्या लिखना पड़ेगा? रो एंड कॉलम. If you remember, this one row, another row, and another row. So I will write a loop that will say row. If you remember, row starts from 0, row should be less than matrix dot length and row plus plus, and each row we have columns. और कॉलम मतलब अभी ये एलिमेंट्स. ठीक. अब मुझे क्या करना है? ये एलिमेंट ये कितनी बार चलाना? ये फर्स्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर का फर्स्ट एलिमेंट, मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो है उसका लेंथ, सेकेंड रो उसका लेंथ, थर्ड रो उसका लेंथ, एंड देयर यू प्रिंट मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम एंड यू गिव अ न्यू लाइन. इफ यू रिमेंबर पैटर्न्स क्वेश्चन हमने देखा था. सेम चीज फॉर मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 3, सेम लॉजिक. समझे? व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन? ये करने से आपका, लेट मी चेंज दिस टू मैट्रिक्स ऑफ 2, मैट्रिक्स 2, सेमी लॉजिक है. ये सारा 0 0. ठीक. नाउ आई वांट यू टू डू द मैट्रिक्स एडिशन. आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा. करेंगे करेंगे उसको भी, फॉरिश में भी करेंगे आपको, डोंट वरी. चलो फॉरिश भी देख लेते हैं इधर. लेट्स से आई हैव दिस एरे और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं. सॉरी. Now to print the content of this array, I have multiple options. One by one,
ट्रेडिशनल फॉर लूप एंड दूसरा है मेरे पास इनहांस फॉर लूप. सो इनहांस फॉर लूप का बहुत सिंपल सा लॉजिक है. सो फॉर, और ये कुछ ऐसा सिंटैक्स है, सिमिलर दिखाई दे रहा है राइट. बट यहाँ पर आपको वैसे इनिशियलाइजेशन कंडीशन ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं. दिस इज द इनहांस वन. तो यहाँ पर क्या लिखना है, एलिमेंट्स कौन से टाइप का मिलने वाला है एरे में आपका, इंटीजर. तो यहाँ पर एक टेम्प नाम का वेरिएबल कोई भी नाम दे सकते हो आप, कोलन, कहां से वैल्यूज रीड करना है एरे से. सो व्हाट इट डज, so each iteration one value will be copied from this array that will be put inside the temp. You can utilize that temp here, use that. Then next iteration, next value will be picked up from this array, will be stored inside the temp and so on. ये कब तक चलेगा, जब तक array में elements है तब तक चलेगा. This is mostly for reading purpose. If you look at this, simple. ये वाला आपका enhanced for loop का है. So you write कहां से डेटा आने वाला है और each iteration you put that. ओवर द टाइम आपको प्रैक्टिस हो जाएगा. तो इसमें होता क्या है कि ईच इटरेशन एक एलिमेंट यहाँ पर टेम्प में आएगा, दैट यू यूज हेयर, सो ऑन. कब तक चलेगा, जब तक एलिमेंट्स है तब तक आपके पास ये चलेगा. नाउ आई हैव टू matrices and we want to do the addition of that matrices. So how do we do that? Let's see this. So I have matrix 1. You can access the values, accept the values from user as well, hard code करने के बजाय. But for now, I'm just putting this here. Okay. So I have this one matrix. Okay. This is another matrix. I want to do the addition of these two matrices. So how do you do that? So we do the addition of this element with this element with this. So 0, 0 plus 0, 0, 0, 1, 0, 1. So before I talk about that, can you just tell me the position of each element? Matrix 1 का position, जो भी each element है. Can you tell me the size or maybe element? First, जो 10 है, इसका क्या लोकेशन है, 0th रो 0th element, then 0, 1, 0, 2 and 0, 3. ये मेरा फर्स्ट रो. देन इसका आई होप समझ में आ रहा है. ये आपका सम होगा 0, 0, 0, 1 ऐसे. सो ये फर्स्ट एलिमेंट इनका एडिशन होगा सेम इंडेक्स वाला. तो इसलिए याद रखना कैसे फॉर लूप तो सेम और सेम लेंथ होगा. सॉरी, रो और कॉलम सेम रहेगा आपका. करना क्या आपको, एडिशन करना. यू वांट टू क्रिएट अनदर और यू कैन डायरेक्टली प्रिंट एडिशन एज वेल. यहां पर प्रिंट कर सकते हो. मैट्रिक्स 1 ऑफ रो कॉलम प्लस मैट्रिक्स 2 रो कॉलम और उसके बाद दैट्स इट. क्या हो गया, न्यू लाइन पे कैसे आ गया. हाँ ये इधर वाला.
सिंपल सेम लूप चल रहा है, कोई फैंसी नहीं है, बस एलिमेंट का। ठीक है, so this is some basic questions. Let's go back to the original questions we have. So we'll come back to more questions on this. Chalo, next entry question we have, that is reversing the array element. Reverse array. Reverse array content. अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है. If you remember the pattern question, you should understand. Now, let's say I have this array. Now, when I say reverse the array content, most of the people, what they do, so when I say reverse the array, so most of the people, what they do, they run a loop. They start from array dot length minus 1 and array is less than or equal to an array minus minus, this I minus minus. तो इससे हो क्या रहा है? You are just printing from 20, ऐसे यहां से प्रिंट कर रहे हो आप 20, 11, 9, 20, 10, ये आप करते हो. This is not array reverse. It is just printing the reverse order. Student का solution. So this is wrong. This is wrong. आपको प्रिंट करने के लिए नहीं बोला है, आपको एग्जिस्टिंग एरे. अब 0th इंडेक्स पे क्या है? अभी भी 10. फर्स्ट इंडेक्स पे अभी भी क्या है? 20. बट आई डोंट वांट दैट. Now I want this 7 to be at index 0, 11 at index let's say 1. तो मुझे उनका एक्चुअल एरे कंटेंट रिवर्स करना है, नॉट द प्रिंटिंग. दूसरा एक और स्टूडेंट डू दैट, दैट इज ठीक है, दैट इज अ सॉल्यूशन बट नॉट अ ऑप्टिमाइज्ड वन. ये तो पहला ये रॉन्ग है. दिस इज नॉट समथिंग. सॉल्यूशन 1 using another array. So what they do, they create a new array, reverse array, और उसके अंदर उसका साइज बनाते हैं जो ओरिजिनल एरे उसके साइज का लेंथ वाला ये नया एरे बनाते हैं. अभी तो ये 0 0 है. अब यहां पर ये क्या करते हैं, और यहां पर एक और वेरिएबल लेंगे इन j इक्वल टू 0, और यहां पर ऐसे कुछ, और यहां पर j प्लस प्लस. इसमें क्या कर रहे हो आप? एरे 1 का कंटेंट रिवर्स से रीड करके आप नए इसमें पुट कर रहे हो, नए एरे में डाल रहे हो. दैट्स इट. दैट इज व्हाट यू आर डूइंग. अब इसमें दिक्कत क्या है? नया एरे आपने क्रिएट किया. मेरा क्वेश्चन क्या था? उसी एरे में रिवर्स करना था. तो अभी ये भी आप गलत करते हो.
तो क्वेश्चन ये है कि आपको एग्जिस्टिंग एरे में ही मॉडिफाई करना है। तो क्या कर सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ा है उन्होंने, पहले आपने पढ़ा है क्या एरे वगैरह? हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बताओ। तो मेरे पास ऐसा कुछ एरे है, एलिमेंट्स आर 10, 20, 9, 11, 20। इंडेक्स अगर देखोगे आप, 0, 1, 2, 3, 4। आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है? व्हाट इज आउटपुट एक्सपेक्टेड? ऐसे कुछ, ऐसे एक्सपेक्टेड है, राइट? नाउ इफ यू क्लियरली सी द आउटपुट, 10 और 20, इनको स्वैप कर दिया आपने अगर, इफ यू स्वैप इन दोनों को, फिर 10 एंड 11 को, लाइन वैसे ही रहेगा, आपका आउटपुट आएगा। क्या करना है आपको? बस 10 और 20 को स्वैप कर दिया, यू गेट द आंसर। दो स्वैपिंग में आपको आंसर मिल रहा है। तो करना क्या है फिर आपको? हाउ डू वी राइट द लॉजिक? ये तो समझा कि आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट स्वैप कर दो। कब तक स्वैप करना है? मतलब ऐसा बोल सकते हैं, जब तक लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। क्या है? आई हैव लेट से लेफ्ट, कहां पर है लेफ्ट? एट 0। राइट किधर है अभी? कब तक चलना है? जब तक लेफ्ट एंड राइट एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। मतलब जब तक आपका लेफ्ट, लेफ्ट इज लेस देन, कब तक चलना है आपको? जब तक मेरा लेफ्ट लेस देन है राइट तक। लेफ्ट आगे आगे जाएगा, राइट पीछे पीछे आएगा। तो करना क्या है यहां पर? लेफ्ट पहले 0 पे था, फिर लेफ्ट यहां पर आएगा। तो लेफ्ट क्या करना है आपको? लेफ्ट प्लस प्लस करना है, और राइट माइनस माइनस। माइनस माइनस। और करना क्या है? स्वैप करना है। तो स्वैप के लिए क्या करना है आपको? एक टेम्प ले लो। टेम्प एरे ऑफ लेफ्ट, एरे ऑफ लेफ्ट इक्वल टू एरे ऑफ, और एरे ऑफ राइट इक्वल टू, दैट्स इट। यही है लॉजिक। तो करना क्या है? सो विल टेक टू वेरिएबल्स, int left equal to 0 and right equal to, that's it। अब यहाँ पर while लूप लगा सकते हो। while left is less than right, while left is less than right, int temp equal to left, array left equal to array right, array right equal to temp left plus plus right minus minus। अब आप फिर से उसको प्रिंट करो कंटेंट, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि आपने रिवर्स्ड एरे।
कैसे प्रिंट कर सकते हो आप? So you got the output? Yes. So ये आपका सिंपल सा सॉल्यूशन. Any other better option? या सही है इतना? आउटपुट ये वाला सॉल्यूशन. ये वाले भी आप करते हो रॉन्ग. तो आप ओरिजिनल एरे यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो. सिंपल. सो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में. तो स्ट्रिंग रिवर्स करने का लॉजिक वहां पर भी आप ये यूज कर सकते हो. लॉजिक सेम लॉजिक. क्लियर? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? अयान, अक्षय? नो? श्योर? सर बोलो. वो int j इज इक्वल टू 0 लिया था कहां पर? अपना रिवर्स एरे में. हाँ. हाँ, और वो ऊपर ऊपर फर्स्ट सॉल्यूशन. हाँ यहाँ पर. हाँ, और वो इसको दे दिया था रिवर्स एरे में. हाँ. हाँ, तो यानी कि वो इंडेक्स की. रिवर्स एरे जीरो से स्टार्ट होगा ना. हाँ रिवर्स एरे में जीरो इंडेक्स पर क्या रखना है? जो एरे का लास्ट इंडेक्स है हाँ वो रखना है. फिर जे प्लस प्लस हो गया जीरो. वो नए एरे में जे पोजीशन मतलब मेरा वन होगा. तो उस पोजीशन में क्या रखना है? लास्ट वाला एलिमेंट, सेकंड लास्ट, एंड सो ऑन. तो जैसे हम रिवर्स एरे की इंडेक्स हम डिफाइन कर रहे हैं. हाँ ये इंडेक्स. हाँ. तो सेम इंडेक्स में नहीं रख सकते ना. इसको लास्ट से चालू कर रहे हैं हमने एरे को रीड करना, और इसको स्टार्टिंग से. ओके ओके. फाइन. यस सर. चलो नेक्स्ट है. So this time I want answer from you guys. So you have to find out a missing number. How are you going to find that? सोचो पहले. डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जम जाने से पहले सोचो. बहुत सिंपल आंसर है इसका. फॉर लूप लगाएंगे पहले तो. फिर क्या करोगे? कंपेयर करेंगे. आई से कंपेयर करोगे कि अरे मिसिंग नंबर मेरे को किधर है? मिसिंग नंबर की किधर है मेरा? मिसिंग फोर है. हाँ ठीक है. सॉर्टिंग नहीं है अभी इसके अंदर. ऐसा ही है. सर हाँ बोलो.
1 ते 5 म्हणजे नंबर घेणार आणि त्याच्यामध्ये इक्वल चेक करत राहणार कोणत्या नंबरला इक्वल आहे आणि मग जो नंबर मिसिंग आहे तो प्रिंट करणार. क्या करना है? एक हम्म. 1 ते 5 नंबर घेणार आपण. हाँ. ठीक आहे. मग 1 ते 5 नंबर आहे ना, आपण इक्वालिटी चेक करत राहणार, की 1, 1 म्हणजे 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, मग 4 इज इक्वल टू 5 नाही, तर मग तो नॉट इक्वल वाला याच्यामध्ये टाकू शकतो. असं काहीतरी. इसको मल्टीपल ऑप्शंस है, देखो. सबसे पहले आपने ये किसी ने बोला कि इसको कंपेयर करेंगे आप हर एक एलिमेंट को हर एक के साथ. नहीं नहीं, उसमें मिसिंग नंबर मतलब आपको सीक्वेंस है ना इधर, या 1 2 3, फिर बीच में कहीं तो होगा. तो क्या कर सकते हो फिर? मयूरेश ने बताया ऑलरेडी सोल्यूशन. बस. सो अप्रोच आपके पास पहला, सबसे पहला अप्रोच है कि सम निकालो बस. सम ऑफ एन नंबर्स. फॉर्मूला है इधर सिंपल सा. क्या फॉर्मूला है? सम इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2. ये फॉर्मूला मिल गया, राइट. अब इससे क्या होगा? टोटल सम मिलेगा आपको, 1 से लेके 5 तक सबका सम निकलेगा आपको इसमें. अब करना क्या है? एक्चुअल सम भी तो निकालना है आपको. फाइंड एक्चुअल सम. फाइंड एक्चुअल सम कैसे करोगे? फॉर लूप लगाओ इसके लिए, और फिर जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस किसका डिफरेंस? एक्चुअल और ये आपका फॉर्मूला सम. फॉर्मूला माइनस जो भी एक्चुअल है, दैट इज योर मिसिंग नंबर. सिंपल. तो क्या करोगे आप? इन सम इक्वल टू फॉर्मूला सम बोल सकते हो, या एक्चुअल सम, या फॉर्मूला सम. तो व्हाट इज दैट? एन क्या है मेरा अभी? 5. सो जो भी लास्ट एलिमेंट है, एरिया ऑफ लेंथ माइनस 1. सो मेरा एन क्या है इधर? कैन यू टेल मी एन? एरे ऑफ एरे लेंथ माइनस 1. लास्ट वाला एलिमेंट मुझे मिलेगा. अब सेम फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2. अब एक्चुअल सम, एक्चुअल सम अभी मैं यहाँ पर 0 लिख लेता हूँ. अभी वही फाइंड करना है आपको. तो हाउ डू यू राइट दैट? यू कैन राइट अ फॉर लूप, इनहांस फॉर लूप, और एक्चुअल सम इक्वल टू टेम्प. तो मिसिंग नंबर सीधा सीधा क्या होगा? फॉर्मूला सम एक्चुअल सम, दैट्स इट. मिसिंग नंबर इज 4. सिंपल. क्या किया? हम्म.
Pushkar, able to understand? Simple. चलो आगे बढ़ते हैं. Now next question is, move all zeros to the beginning. सर ते मिसिंग नंबर फाइंड करायला एकच वे आहे का? मल्टीपल है, हैशेड भी है आपके पास, बट अभी वो हमने पढ़ा नहीं है हाँ. इसलिए. बट सिंपल है, ज्यादा कुछ. हैशेड इज आल्सो वन ऑप्शन. क्या करना है आपके आपको? मूव जीरोस. Move all zeros to the beginning of an array. This is the question. So I want you to answer. ऐसा कुछ भी array हो सकता है. यहाँ पर भी जीरो हो सकता है. यहाँ पर भी जीरो हो सकता है. यहाँ पर भी जीरो हो सकता है. स्वैपिंग का फंक्शन बनाओगे, मतलब क्या करने वाले हो ये बताओ. हम्म. ठीक है. हम्म. बाकी ऑर्डर. अब मेरे पास कितने जीरोज हैं? 3 जीरो. स्टार्टिंग में मुझे 0 0 0 ये आना चाहिए. तो बाकी इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए. 1 2 3 4 6 7 8, ये ऐसे ही रहेगा. यस. सोचो. त्या झिरोजला शिफ्ट करत करत राहू आपण. हाँ हाँ वही करना है. यस अयन. सारे से उठा के डाल दो बोलना.
हम्म 1 to 0 सेट मतलब? हाँ। हम्म तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम पहले इटरेशन में बस जीरोस फाइंड करोगे कहाँ पर है। जीरो का पोजीशन आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद क्या करोगे? आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अक्षय? हम्म मतलब क्या सोच पा रहे हो अब इसमें? इसमें देखो, पहले तो एक पहला काम है कि जीरो आइडेंटिफाई करना, दूसरा काम है कि उसको स्टार्टिंग में शिफ्ट करना है, तो सोचो फिर। जे झिरो आले त्याचा एक नवीन ॲरे बनवायचा आणि तो याच्यामध्ये परत अपेंड करायचा. वो बोलो, क्या बोल रहे थे? झिरोचं एक ॲरे तयार करून घ्यायचं नवीन हम्म आणि त्याला ह्या ॲरे मध्ये स्टार्टिंगला अपेंड करायचं. हम्म कैसे अपेंड करोगे? तो ही काम है, मैं वही बोल रहा हूँ। इसको ऐसे उल्टा भी पढ़ सकते हो आप। पहले पता करो कि कौन से नंबर्स नॉन जीरो नहीं है, ये कर सकते हो। एंड से जाओ या फर्स्ट से जाओ। अगर मैं ऐसे ही एंड से जा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले कौन सा नॉन जीरो नंबर दिख रहा है? 8, फिर 7, 6, 4, 3, 2, 1। अब करना क्या है? हम्म? एक और मतलब बहुत ही मतलब बेसिक सा आप कर सकते हो काम। क्या कर सकते हो आप? मैंने आपके सामने आंसर बताया, मतलब कुछ तो एकदम इफिशिएंट सॉल्यूशन है, लेकिन बेसिक वाला तो बता सकते हो। क्या समझ में आ रहा है आपको? रिवर्स क्यों करना है उसको? कुछ तो बेसिक, एकदम बेसिक वाला। एक छोटे बच्चे से क्या कर सकते हो आप? बहुत बेसिक, एकदम बेसिक, तोड़ो इसको एकदम। बहुत बेसिक वाला। क्या समझ में आ रहा है आपको? इफिशिएंट सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, पहले क्या समझ में आ रहा है आपको? इंटर में आपको एटलीस्ट बेसिक तो बताने आना चाहिए कि ये कर सकते हो, उसके बाद फिर ऑप्टिमाइजेशन का सोचो। सबसे बेसिक क्या समझ में आ रहा है आपको? झिरोस को और नॉन झिरोस को अलग अलग करना है. खत्म। तो आप क्या कर सकते हो? बेसिक इतना तो बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? तो सेपरेट करो कुछ। फिर मर्ज करने का कुछ तो ट्राई कर सकते हो। गिव दैट सोल्यूशन।
आपण असं करू शकतो, इफ अरे ऑफ आय इज नॉट इक्वल टू 0 ते प्रिंट केलं आणि मग आपल्याला जो मेन अरे तो 0 0 राहील उरलेला. हम्म मग सेकंड अरे त्याच्यामध्ये जर अपेंड केला म्हणजे डॉट ऍड किंवा मर्ज यूज करून, तर आपल्याला हम्म भेटून ठीक है, वही सोचो फिर से एक बार। तुमको पता करना है कितने जीरोज है, मतलब कितने जीरोज है और कहां से जीरोज मुझे लिखना है, कहां से जीरोज मुझे लिखना है ये तो पता कर सकते हो। अब मुझे बताओ, लेट्स से मुझे मेरा पूरा एरे में जीरोज ही है, लेट्स से आई हैव ऑल द एलिमेंट्स जीरोस, ये भी एक एज केस है ना, एरे में पूरा जीरो हो सकता है, तो कितने जीरोज लिखना है, उतने ही। तो लेट्स से मैं यहां से मतलब यहां तक मुझे क्या लिखना है, मैक्सिमम कितने जीरोज लिख सकते हो आप, इक्वल टू एरे लेंथ। तो मेरा एक मैं एक पॉइंटर लूंगा, एक रेफरेंस, कि मुझे अभी मेरा जहां पर राइट जीरोस, एक पॉइंटर ले लिया लेट्स से एक, अब मेरा पॉइंटर मैक्सिमम कहां पर हो सकता है, यहां पर, कहां पर, लास्ट एलिमेंट तक। समझो, समझने का ट्राई करो, आपको करना है क्या है, आप, आई एम नॉट, मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं आंसर करूं, आप सोचने का तरीका समझो इसको। बेसिक लेवल पे क्या समझ सकते हो, आपको जीरो सेपरेट करो, नॉन जीरो सेपरेट करो, फिर मर्ज करने का कुछ ट्राई कर सकते हो आप, दैट इज वन लोवेस्ट लो लेवल ऑफ सोल्यूशन। क्या कर सकते हो आप, मुझे पहले बताओ कि जीरोस कैसे कैसे फाइंड करोगे आप। एक काउंट ले सकते हो आप, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, ठीक। फिर अभी क्या होगा, आपको कितने जीरोस मिल गए, 3, टोटल लेंथ कितना है, 10, 10 में से 3 गए, अब बाकी बचे कितने, तो आपको अभी एक और दूसरा एक एरे क्रिएट करना होगा, उसमें एक नया, अभी आपको काउंट तो मिला जीरोस का, यू गॉट अ काउंट ऑफ जीरोस। अब नया एरे कितने का बनेगा, कितने साइज का, 7, 7 बनेगा, राइट। या आप सीधे सीधा क्या बना सकते हो, 7 बना दिया न्यू, और उसमें क्या ऐड किया आपने एलिमेंट्स, ये ओरिजिनल एरे में से नॉन जीरो एलिमेंट अगर नॉन जीरो है तभी उसमें ऐड करोगे आप, तभी आप उसमें ऐड करोगे, खत्म। हाँ वो तो मैं बात की बात है वो, लेकिन अभी एकदम लोवेस्ट लेवल का सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ एकदम। पहले जीरो, नॉन जीरो का काउंट बताओ, फिर दूसरा क्या कर सकते हो, नॉन जीरो, फिर मर्ज करो, बस खत्म। लोवेस्ट लेवल का एक सोल्यूशन बता सकते हो, राइट। फिर बाद में आप 2 पॉइंटर पे आ सकते हो, बट बेसिक एकदम छोटे बच्चे वाला क्या सोल्यूशन है, जीरो, जीरो का काउंट निकालो। क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में जीरो लगाना है, तो क्या कर दिया, जीरो तो काउंट मिल गया, ठीक। अब दूसरा क्या करना है, मुझे एक नया एरे बनाना है जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। नॉन जीरो एलिमेंट्स कहां से आएंगे, इसमें से आएंगे, तो मेरे पास अभी तीसरा लास्ट वाला एक एरे बनाएंगे हम, दोनों मर्ज करेंगे, पहले जीरो लगाएंगे उसके बाद नॉन जीरो, खत्म। ये एकदम लोएस्ट लेवल का सोल्यूशन, जिसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हो, अलग से एरे ले रहे हो आप, 2 बार आप, मतलब दैट इज अ स्पेस यूटिलाइजेशन। वो बेसिक वाला सोल्यूशन हो गया, एटलीस्ट उतना तो सोचने आना चाहिए आपको, ठीक। ये हो गया। अब दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है इसमें, विदाउट टेकिंग न्यू एरे, रिवर्स में भी हमने क्या किया था, नया एरे लिया था, वो एक बेसिक है, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, आपको ओरिजिनल एरे में ही चेंज करना है, बट वो इतना इफिशियंट नहीं है। अब इसको थोड़ा और इफिशियंट क्या बना सकते हो, सेम एरे में जैसे हमने रिवर्स के टाइम पे कुछ किया था, वैसे कुछ यहां पर सोच सकते हैं। वहां पर हमने क्या 2 पॉइंटर लगाए थे, लेफ्ट और राइट, तो यहां पर भी कुछ सोचो ऐसे। हम्म, स्वैप करेंगे तो फिर मेरा आगे वाला एलिमेंट,
दूसरा एलिमेंट आ गया, चलो मैं लिख लेता हूं, लिखूं, क्या करूं? हाँ, इक्वल टू 0, ये एरे लेंथ हो गया। इसके अंदर दूसरा फॉर लूप, अरे बाप रे, ये तो फिर इससे और ठीक है। जे प्लस इफ एरे ऑफ आई, क्या करना है इसमें? सबका लॉजिक, इसमें क्या लॉजिक? इफ ये n स्क्वायर जा रहा है तो ये भी इफिशियंट नहीं है, लेकिन ठीक है, ये सोल्यूशन हो सकता है, बट दिस इज n स्क्वायर, दिस इज नॉट इफिशियंट। दूसरा क्या सोच सकते हो? जैसे हमने रिवर्स में लॉजिक लगाया था, लेफ्ट राइट ऐसे कुछ। सर हाँ। ऐसा कर सकते हैं लेफ्ट राइट का, कि अगर एरे में वैल्यू 0 आई तो उसकी इंडेक्स हम माइनस माइनस करते हुए स्टार्ट तक लेके जाएंगे। हम्म, चैट जीपीटी नहीं किया ना? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, क्या करोगे आप? हाँ, तो एक और सोच सकते हो कि मुझे मैक्सिमम जीरोस कितने लिखना पड़ सकता है, राइट? सो हाउ मेनी, मुझे कहां तक स्टार्ट करेंगे हम जीरो से, लेकिन कहां तक? यहां तक। अब मुझे क्या करना है, एक पॉइंटर ले रहा हूं मैं, कौन सा? राइट वाला, या राइट जीरोस कहां तक? एंड। तो क्या करना पड़ सकता है मुझे? स्टार्ट कहां से हो सकता है? ठीक है, एक पॉइंटर ले लिया मैंने कि मुझे कहां तक, मुझे एलिमेंट्स जीरोस कहां तक लिखना है। अब ये कहां पर है? लास्ट। अब ये मैक्सिमम इतना है, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दैट वी कैन राइट इनसाइड एन अरे। अब क्या कर सकते हो आप? ये कम होगा ना, इसमें कितना होना चाहिए, कितना नंबर ऑफ जीरोस लिखना चाहिए हमने? एक, दो, तीन, राइट? तीन ही लिखना चाहिए ना हमने। तो मेरा पोजीशन कहां पर आना चाहिए? पहले तो आप ये काम कर सकते हो, काउंट निकाल सकते हो, हाउ मेनी जीरोस यू वांट टू राइट, हाउ मेनी जीरोस यू वांट, वो एक तरीका है। बट यहां पर क्या करेंगे हम स्टार्ट करेंगे एंडिंग से। क्यों स्टार्ट करेंगे एंडिंग से? मैक्स नंबर ऑफ जीरोस है, सो उसमें से ये माइनस होगा। ये कब माइनस होगा? जब जब मुझे नॉन जीरो नंबर मिलेगा। कितने नॉन जीरो नंबर्स? 7। कितने हैं? 7। तो मेरा अभी कितना बनेगा ये? 9 माइनस 7, 2। तो मैक्सिमम मेरा एंड कहां तक होगा? 0, 1, 2। तो तीन जीरोस मुझे लिखना पड़ेगा। अब यहां पर मैं लूप क्या लिखूं? सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स, कहां से? लास्ट। सो array dot length minus 1, and I should be greater than equal to 0 and I माइनस माइनस। अब इसमें क्या करेंगे हम? इफ array of I is not equal to 0, देन क्या करेंगे हम? राइट जीरोस एंड माइनस माइनस, ये करेंगे। क्या करेंगे हम? इसका काउंट माइनस माइनस हो गया, ये लास्ट में कितना रहेगा? 3, सॉरी 2 रहेगा। 9 है ना, 9 से फिर 8, 7, सो 1, 2 तक आएगा। तो कितने एलिमेंट राइट करेंगे हम? 0, 1, 2 पोजीशन पर, तीन जीरोस। तो मुझे पता चल गया कि मुझे जीरोस कहां तक लिखना है, ये हो गया।
अब दूसरा एक और चीज हम यहां पर करेंगे, क्या करेंगे? ये तो हो गया, काउंट मिल गया मुझे। हाँ, कितने जीरोस लिखना है स्टार्टिंग, मतलब मेरा जीरो इंडेक्स से लेके 2 इंडेक्स पर मैं जीरो लिखना है, ये हो गया। अब आगे वाले जो जीरोस है, इसके आगे ये क्या करोगे फिर इसका? एक ही लाइन लिखना है बस आपको। ये तो मिल गया आपको, ठीक है। अभी आपको करना क्या है? डोंट यू थिंक वी हैव टू चेंज समथिंग? ये लाइन यहां पर मैं, ये माइनस माइनस यहां पर भी कर सकते मैं, एक ही लाइन में कर दिया ये। चलो मैं इसको अलग ही लिख लेता हूं, so that you don't get confused. Okay. अभी ये क्या कर रहा है लाइन? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी दिस लाइन? ये लाइन सिंपली क्या कर रहा है? जब मुझे एरे ऑफ आई नॉन जीरो मिलेगा, एरे ऑफ जीरो नॉन जीरो मिलेगा, लेट स्टार्ट विद दिस। अब मुझे मिला 8, क्या मिला? 8। तो राइट जीरोस मेरा अभी किधर है? यहां पर। तो मैं क्या कर रहा हूं, एरे ऑफ राइट जीरो, यानी लास्ट पोजीशन पर मैं एरे ऑफ आई लिख रहा हूं। एरे ऑफ आई क्या है अभी? 8। क्या मिला मुझे? 8। और राइट जीरोस माइनस माइनस होके यहां पर आ गया। तो लास्ट पोजीशन पर क्या है अभी मेरा? 8 हो गया। यहां पर क्या है अभी? तो जीरो कहां है? अभी भी 80 है वो, अभी भी 80 है। नेक्स्ट हम क्या आ गए अभी यहां पर? 8। अभी भी यहां पर क्या रहेगा? 80 है। अब आ गया 7, ठीक। और यहां पर मेरा 8 कहां पर गया? लास्ट यहां पर, ठीक है। अब 8 की जगह और मुझे क्या चाहिए? 7। तो एरे ऑफ राइट जीरोस, एरे ऑफ राइट जीरोस किधर है मेरा? यहां पर। ये वाला वैल्यू बनेगा एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई क्या है? 7। तो इस लोकेशन पर मुझे मिलेगा 7। समझे? अब मेरा ये 1 2 3 ये सब कुछ यहां पर आ जाएगा, और लास्ट में मुझे क्या करना है? बस पहले 3 पोजीशन पर जीरोस लिखना है। बस क्या लिखना है? जीरोस। सो व्हाइल greater than 0, array of, that's it. So you'll understand this, what I have done. Let's try to understand. तो मैंने क्या किया? पहले तो बाद में जीरोस लिख रहा हूं मैं, बाद में 3 जीरोस लिख रहा हूं मैं, और यहां पर बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। कैन यू लुक एट दिस? 3 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। बस एक, इससे क्या हो रहा है? मुझे पता चल गया कि कहां तक जीरो लिखना है। तो मेरा राइट जीरोस कहां आएगा? इस पोजीशन तक। तो 0 1 2 3 3 पोजीशन पर जीरोस लिखना, ये हमें फिक्स हो गया। बट उससे पहले मैंने यहां पर एक लाइन लिखा है। क्या लिखा है? जब भी मुझे नॉन जीरो नंबर मिलता है, नॉन जीरो नंबर मिलता है, तो मुझे क्या करना है? उसको एंड में शिफ्ट करना है ना।
क्या करना है, एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना है। क्यों शिफ्ट करना है, समझो यहां पर मुझे मिल गया एक ही लाइन में जीरोज लिखना है, मैं यहां पर 0 1 3 पोजीशन पर 0 लिख दिया, 1 2 3 किधर गया फिर, वो नहीं गया ना अगर ये लाइन नहीं लिखा तो। अगर ये लाइन लिखोगे आप, इफ यू राइट दिस लाइन, तो इससे क्या होगा, 8 आगे बढ़ेगा, 7 भी आगे बढ़ेगा, 6 भी आगे बढ़ेगा, 4 भी आगे बढ़ेगा, 3 भी आगे बढ़ेगा, 2 भी आगे बढ़ेगा और 1 भी आगे बढ़ेगा। समझे क्या किया, एक लाइन से ओनली वन लाइन, ये वाला लॉजिक, ये लाइन समझा क्या सबको, क्या किया मैंने, त्या इंडेक्सवर आपण हे एरो ऑफ आय टाकतो. खत्म। लास्ट में जहां पर मेरा अरे ऑफ जीरो है, अभी यहां पर मेरा अरे ऑफ जीरो यहां पर है, यहां पर ये राइट जीरो यहां पर है। अब मुझे इस पोजीशन पे क्या डालना है, करंट क्या वैल्यू है 8, तो उसके इधर डाल दो, तो ये यहां पर 8 आ गया। अब दूसरा फिर 7 किधर डालना है, यहां पर, तो मेरा राइट जीरोज वाला जो इंडेक्स है 0.2 वो माइनस माइनस हो रहा है, दैट्स इट, खत्म। म्हणजे जे इंडेक्स मायनस मायनस होते तिथं आपण फक्त एरे ऑफ आय जो नॉन झिरो नंबर आहे हाँ त्याला तिथे रिप्लेस करत जातोय. करेक्ट, बस ये लाइन है समझने वाला, दिस इज द ओनली लाइन। ठीक है, आणि व्हाईल मध्ये मग काय केलं आपण? वाइल में जीरोज लगाया हमने बस स्टार्टिंग में, जीरोज लगा दिया बस। क्या कर दिया हमने, 0 1 2 पोजीशन पे 0 डाल दिया बस, इजी। चलो वन मोर, अब आपको पेयर फाइंड करना है, क्या, चलो दिस आल्सो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, चलो ये तो आप कर सकते हो। सो मुझे क्या सम चाहिए, अ, हम्म, बोलो। So you have to find the element which sums to 11. इसके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। So पहला तो अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो इफ एरे इज नॉट सॉर्टेड, if array is sorted. Approach 1, if array is not sorted, then you can think of using hash map, जो हमने पढ़ा नहीं अभी तक, hash map, और if the array is sorted, we can use 2 pointers. तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास। Now for now just understand array is sorted, हमने sorted array, hash map I will not consider now, अभी के लिए ये देखो कि array sorted है। अब मुझे बताओ कैसे करोगे, सर बोलो। म्हणजे 2 फॉर लूप घेऊन घेणार. दोन फॉर आणि लूप, एक के अंदर एक फॉर लूप, हा म्हणजे त्याच्यामध्ये मग चेक करणार आपण की
म्हणजे 1 म्हणजे पहिल्याच्या मध्ये 1 आला, तर तो पुढे 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर्यंत म्हणजे त्याची ॲडिशन झाली, की तो समच्या इक्वल येतोय का नाही. मग असं एक-एक करून आपण चेक करत राहणार. मग जेव्हा 5 प्लस 6 होऊन जाणार, मग तेव्हा तो सम इज इक्वल टू होऊन जाईल आणि ब्रेक होऊन बाहेर येईल. 9 plus 2, that is also 7 plus 4, then 8 plus 3, 6 plus 5. मल्टीपल पेयर्स हैं, बट मुझे पहला पेयर मिल गया तो भी आई एम फाइन. क्या टारगेट चाहिए आपको? व्हाट इज द टारगेट यू वांट? 11. सो यू हैव टू फाइंड द, तो लेफ्ट राइट कर सकते हो आप 2 पॉइंटर्स. यू कैन डू समथिंग. सॉर्टेड है ना, समझो. अरे लेफ्ट और राइट सम निकालो. अगर सम इक्वल है रुक जाओ. अगर सम इक्वल नहीं है तो लेफ्ट को बढ़ाओ. लेफ्ट को क्यों बढ़ाना चाहिए? लेफ्ट को बढ़ाओ. 2 प्लस 9 11. अगर नहीं है इक्वल, अब कब बढ़ाना है वो भी देखो. सबसे पहले देखो क्या करना है. लेफ्ट राइट किया आपने, लेफ्ट और राइट. लेफ्ट और राइट की सम करो. ठीक है, इक्वल आया तो स्टॉप. अब आपके पास 3 ऑप्शंस है. आपकी जो सम आएगी, दैट सम विल बी इक्वल टू जो टारगेट है. ठीक, तो आगे आपका आंसर उधर ही रुक जाओ. अब आपके पास 2 ऑप्शंस है. अगर आपका सम, अगर आपका सम, कौन सा सम? 1 प्लस 9 10. 10 इज लेस देन योर टारगेट. तो क्या करना चाहिए हमने? क्या हुआ? 9 प्लस 1 10. सो 10 इज लेस देन 11. तो क्या करना चाहिए हमने? लेफ्ट को आगे लेके जाओ ना. 2 प्लस 9, सॉरी 2 प्लस 9 11. रुक, दैट्स परफेक्टली फाइन. आगे रुक गया, इक्वल हो गया, रुक. बट अगर मेरा सम इज ग्रेटर देन टारगेट, तो क्या करना चाहिए? 3 चीजें है. सम इक्वल आ गया, लेफ्ट राइट सम इक्वल आ गया, रुक जाओ. अगर मेरा सम टारगेट से छोटा है तो क्या करना चाहिए मैंने? लेफ्ट, लेफ्ट प्लस प्लस. अगर मेरा सम ज्यादा है तो राइट माइनस माइनस. सिंपल. तो दैट इज योर 2 पॉइंटर. तो क्या कर रहे हैं हम यहां पर? वाइल इंट लेफ्ट. इफ यू रिमेंबर, हमने पैटर्न्स में लेफ्ट राइट क्वेश्चन किए थे. इफ यू रिमेंबर, किए थे या नहीं? अरे किया था कि नहीं? कंट्रोल स्टेटमेंट में लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लेफ्ट प्लस प्लस, राइट माइनस माइनस. अब क्या करना चाहिए मैंने? बिफ हाँ, लेफ्ट शुड बी लेस देन राइट. तो सम फाइंड करो. एरे ऑफ राइट, सॉरी एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट. इफ सम इज इक्वल टू टारगेट, एरे ऑफ लेफ्ट अगर इक्वल है तो उनका सम प्रिंट कर दो आप और रुक जाओ इधर ही. सो इफ सम इज इक्वल टू टारगेट, देन क्या बताना है आपको? अरे पेयर तो बताना है आपको. एंड ब्रेक, ब्रेक. उसके बाद
एल्स सम इज लेस देन टारगेट, सम कितना है अभी 10, 10 इज लेस देन टारगेट दैट इज 11, तो क्या करना है मुझे, लेफ्ट प्लस प्लस, एल्स सम इज ग्रेटर देन टारगेट देन राइट माइनस माइनस, परफेक्ट। तो सम आप रिटर्न कर सकते हो कि यहां पर ही आएगा, दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो पेयर आपको, तो आप पेयर बता सकते हो, इंडेक्स कौन सा पेयर है वो, जावास्क्रिप्ट में थोड़ा इजी है ना, ये प्रिंट करना थोड़ा, और यहां पर लास्ट में, ओके चलिए वी रन दिस, आ गया, लुक एट दिस। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब आप एंट्री जाओ और पूरा ब्लैंक हो जाओ, हम्म, ऐसा भी हो सकता है राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मूव ऑल जीरोस टू द बिगिनिंग, ये हो गया। तो यहां पर हमने क्या अप्रोच किया, फाइंड अ पेयर सम, और मूव जीरोस के लिए हमने क्या किया, यहां पर बहुत सिंपल सा काम किया था। सो ऑल दीज आर मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस गाइस, ठीक है। सो व्हाट इज द अप्रोच वी हैव फॉलोड, सॉर्टेड एरे है, इस हिसाब से हमने फॉलो किया, लेफ्ट राइट। अब ये सॉर्टेड का फायदा क्या होता है, आपको पता है कि लेफ्ट में छोटा नंबर होगा, राइट में बड़ा नंबर होगा, क्लियर है पुष्कर। चलो आई विल जस्ट, आई विल गिव अ क्वेश्चन नाउ, आई वांट यू टू फाइंड आउट, ठीक। अब मैं यहां पर सोल्यूशन नहीं दूंगा, यू विल फाइंड आउट। सो क्वेश्चन इज, रोटेट एन एरे बाय वन पोजीशन, वैसे तो के होना चाहिए, बट ठीक है अभी के लिए, तो अभी के लिए एक पोजीशन से रोटेट करो, फॉर नाउ बाय वन पोजीशन। एग्जाम्पल, लेट्स से आई हैव वन एरे, ठीक है। तो आउटपुट क्या है, दैट्स इट।